Okay, so Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah Almighty. I'm very thankful to Allah Almighty for giving us an opportunity to gather and conduct this webinar. I am Dr. Isha Tafsir, founder of Research Learning Stream. Many new people have joined us today, so let me introduce myself. I work as an international tutor in Preply, teaching students across various regions. Currently, I am teaching students in Australia and Florida. I'm engaged with Florida International University students, and there I am teaching them a BS 3848 Scientific Literacy and Career course. My core expertise is in research area, research design, especially SPSS data analysis and academic writing. And I have recently trained MBA students from the University of Adelaide, Australia in advanced SPSS data analysis. Apart from teaching, uh, research and publications have always been my passion, and I have worked with various clients from various countries and helped them to just conduct research on basis of international standards and publish articles in various reputable journals with good and excellent impact factors as well. Recently, I have published an article with Dr. Siraj from Saudi Arabia in MDPI journal. So, as research has always been my passion, so me and my co-founder, Ms. Sana Tafsir, she's not present today, but she's a lecturer at UET Lahore. We decided to make a platform so that we can just enable our Pakistani students, our Pakistani researcher to conduct research on international standards and make them capable enough so that they can publish not only in national or HSC recognized journals, they can target for higher or international journals, and they can target good impact factor journals. So this was the just a brief introduction of mine and research learning stream and the motto of creating this platform. Now it is my pleasure to welcome and introduce our today's honorable speaker, Ms. Asma Yunus. Let me just introduce her. She is a researcher in computational and corpus linguistics. Currently, she is serving as Assistant Director at the Global Heritage Research Center, and she is pursuing her PhD from Allama Iqbal Open University. Today she will share her valuable insights on the topic corpus linguistics, research with large language data, and I hope this will be an amazing session today, inshallah. So without any delay, let me just invite Ms. Asma Yunus and request her to begin the session. Thank you, and over to you, Ms. Asma. Okay, Assalamu alaikum, and very good evening to everyone. And thank you very much for such a warm welcome. And I'm very grateful for this opportunity. Very thankful for Dr. Isha and Miss Sana for giving me such an opportunity to engage with such an amazing people. So, my name is Asma Yunus, and I went to start with a very simple question. Um, how many of you check your phone this morning? So maybe WhatsApp or Instagram, a news article. So do you know that everything you read this morning was language data? So it's a do not guess about the language. Corpus linguistic is exactly about that. So do not assume, measure it. So I want to be honest with you today. I am not here to give you a lecture full of big terms. I'm here to show you something real, something you can use tomorrow. So I once counted how many times I used the word okay. So in one single day, it was 47 times. So okay is used when I agree.
Okay is used when I am angry. So okay is used when I want to end a conversation. So same word, completely different meaning. This is corpus linguistic. So we are almost covered how research with large language data and study real language pattern using large text collection, uh, computer tool, and statistical method. So before we go deeper, let me show you how our map for today. We have 5 simple stops. One is what is corpus linguistic. The second one is corpus tool and software. The third one is research methods. The fourth one is real research example. And the fifth one is feature research area. So let me ask you something first. When you learn English grammar in school, did your teacher say the cat sat on the mat? That sentence. So doesn't exist in real life. So nobody say that. Corpus linguistics say. So stop making up sentences. Look at real one. So what is corpus? Corpus is actually a large collection of real text, and we see how the real and the large collection of text together to make a corpus linguistic. So as you can see, news articles, books, tweets, conversation, even WhatsApp chats, all saved together. So a computer can count, sort, and find patterns. So what is pattern? So basically, we have to be focused on real text data to find the different patterns followed during in news article, in WhatsApp, in media. So let me give you an example. The word run in your grammar book, run means to move fast on your feet. So, but in real life, runs used for run business, run out of time, run a test, run for office. So your grammar book has one meaning, real language have 20. So this is why corpus linguistic exists. So in simple word, so I switch with the bilingual tone so that easily all the audience easily grasps the meaning which I want to convey to you. सो बेसिक अगर मैं आपको कॉर्पस लिंग्विस्टिक का एक बताऊं, उसमें ये है कि आप रियल टेक्स्ट को लेते हैं फ्रॉम एनी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स. वो आपकी ट्वीट्स हो सकती हैं, आपके व्हाट्सएप हो सकता है, उसका टेक्स्ट हो सकता है. आप उसको एक कॉर्पस में कंपाइल करते हैं. आफ्टर दैट you have to analyze with the different corpus tools, with the different computational tools to find out the different patterns. How one news media portray the same event in a different way. एक लैंग्वेज है मेन, ये बहुत एक पावरफुल टूल है इस टाइम आपके अपने हैंड में कि आप लैंग्वेज की आपके पावर है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डिफरेंट पैटर्न्स को कि किस तरीके से एक लैंग्वेज जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में भी अपना रोल प्ले कर रही है. एक लैंग्वेज है जो कि आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक पर्सन है, वो एक चीज को या एक इवेंट को एट अ टाइम किस तरह से कन्वे कर रहा है अपनी लैंग्वेज के थ्रू, और वही सेम इवेंट जो है वो दोबारा से नेक्स्ट डे में वो किस तरीके से उसी इवेंट को दोबारा से आपके सामने लेकर आ रहा है यूज विद द डिफरेंट पैटर्न्स. सो दिस इज बेसिकली इन्वॉल्व इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक. सो नाउ how big are real corpora?
So as you can see, different corpora available in Sketch Engine and also in AdCom. So BNC consists of 100 million words. Can you imagine that? 100 million words. And similar is the case with corpus of contemporary American English, 560 million words. So now three simple ideas just there. Language is data, not poetry, not art, data, number, frequency, and patterns. So as you can see, the third one, global web-based English, 1.9 billion word, 20th century. So दिस इज वाई वी यूज कंप्यूटर. अब आप ये देखें कि हमारे पास प्रीवियसली बहुत से कॉर्पोरा अवेलेबल हैं, पहले से अवेलेबल हैं इन और स्केच इंजन, इन एनकॉम, wherever you go with any corpus tool ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास. अब ये एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स के माइंड में रेज होता है कि 100 मिलियन वर्ड का होना जरूरी है फिर वो कॉर्पस होगा. तो दिस इज द बिग क्वेश्चन. सो इन माई थॉट्स या मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप अगर एक 100 मिलियन वर्ड कंपाइल कर रहे हैं बट आपको अपना डाटा का फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है उस कंपाइल्ड कॉर्पोरा का आपका मतलब वो मीनिंगफुल नहीं है. आप बेशक वो स्पेसिफाई करते हैं अबाउट 25K to 10K 20K 40K वर्ड्स काउंट का आपका एक कॉर्पस है, बट आपको अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई उसमें से हो गए हैं, आपको उसमें अपनी फाइंडिंग्स नजर आ गई हैं, तो दिस इज बेसिकली योर कॉर्पस. इट डजंट मैटर कि आप उसको 100 मिलियन या 560 मिलियन का एक कॉर्पस होगा, देन इट्स कंसीडर टू बी अ कॉर्पस. So next is, what type of text go inside a corpus? Now it's like news and media, newspaper. You can if you want to go with an, मैंने जो है वो न्यूज़ मीडिया को ही मेरी स्टडी जो है वो ऑलमोस्ट न्यूज़ मीडिया के रिवॉल्व अराउंड करती है, और मैं उस पर CDA क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस अप्लाई किया. एंड देन सेकेंड वन इज एकेडमिक टेक्स्ट. वी कैन गो विद द रिसर्च पेपर, essays. And the third one is social media. You can go with tweets, Facebook comments, WhatsApp comments. Fiction and book, you can also compile a corpus of novel, short story, published literature. And the last one is spoken oral. This is very important nowadays, and you can see the percent, 7% is available now in spoken and oral. हमें वर्क करने की भी बहुत ज़रूरत है कि आप एक रियल जो डाटा है वो आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, देन यू हैव टू ट्रांसक्राइब इट, और उसको फिर आप एक कॉर्पस में कंपाइल करें, डॉक्यूमेंटेशन करें. सो दिस इज यूजफुल नाउअडेज. So the next one is scholar who build corpus linguistic. The first one is most important quotation from J.R. Fitts in 1957. Words are known by the company they keep. So words are known by the company they keep. So this is very important. इस लाइन से आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसमें ओवरऑल उसने कॉर्पस लिंग्विस्टिक की जो एक वर्ड है वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उससे जाना पहचाना जाता है.
एक वर्ड है उसके करीब कौन से नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड आ रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करेगा, और ये आइडेंटिफाई होगा थ्रू और कॉर्पस टूल्स. So there are many other scholars who discuss the concept of corpus linguistic. So moving toward the corpus tools and softwares. Now the part that most people are waiting for, tools. So I want to say something clearly first. This is a difference between a tool and a library. A tool you open, you click, it works. And a library like NLTK, whether you need to write code. So today we are using tools, the one where you just click, no code, no GitHub, no panic. So इसमें basic difference है tool और corpus में. टूल जो है वो आपको इजीली अवेलेबल भी हैं, फ्री टू यूज भी हैं, यूजर फ्रेंडली भी हैं, बट सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं. बट इन केस के अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हैं तो कॉर्पस टूल इज बेस्ट फॉर टू लर्न और इंडल्ज इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक. So let me start with Voyant tool. Voyant is completely free, and you go to voyant/tool.organize and you are ready. So as you can see, we are moving toward the practical one. So this is you just type down Voyant tool. इसको आप जस्ट क्लिक डाउन करें साथ, तो ये आप वोयान टूल को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको इस तरह की आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा. सो जस्ट आप अपलोड करें इसमें कॉर्पस को, देन ऑटोमेटिकली इट लोड. ये देखिए आप, ये यूजर फ्रेंडली है, एक तो ये फ्री टू यूज है, you can easily work with the Voyant tool, or at a time it's give you result with like Ankong and Sketch Engine. So आप देखिए इसमें आपके पास मल्टीपल ट्रेंड्स हैं, डॉक्यूमेंट टर्म्स हैं, कोलोकेट भी ये इस टाइम आपको दे रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको इसकी समरी भी मिल रही है कि हाउ मैनी टोटल नंबर इसके मेंशन है, यूनिक नंबर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कि यहाँ पे आपके पास एक विजुअलाइजेशन भी शो हो जाती है ऑटोमेटिकली. सो इट्स वेरी इजी टू यूज एंड यू कैन गो विद दिस टूल. सो कोलोकेट आप इसके देखें, पैलेस्टीनियन, बिकॉज इट्स अ कॉर्पस ऑफ अल जजीरा एंड योनरा इज 2024. सो इसमें मैंने अल जजीरा में आपको पता है मल्टीपल न्यूज़ मीडिया आउटलेट विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड फॉल डाउन होती हैं, और वो एक पॉपुलर न्यूज़ मीडिया आउटलेट भी है. सो आप इसे कोलोकेट्स देखें, जैसे पैलेस्टीनियन वर्ड है वो कोलोकेट है पीपल का, ठीक है, गाजा है वॉर. सो दीज आर दी कोलोकेट, ठीक है. ये इस तरीके से आपको कोलोकेशन, और भी इसमें मल्टीपल फीचर हैं, यू कैन एक्सप्लोर. सो और ये एक यूजर फ्रेंडली है, आप जरूरत नहीं है इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली, आप जस्ट वोयान टूल अभी टाइप करेंगे तो ये आपके पास फ्री टू यूज है, और इजीली ये आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा. सो द नेक्स्ट वन इज एनकॉम. Ankong, now let's go to Ankong. Ankong is also completely free. You download it from ankong.org, and it work on Windows, Mac, and Linux. So this look a little more serious, but don't worry, we will use only 3 features today. First, we have to go
the file and open Corpus Manager. I already uploaded the Corpus 2024 there. So automatically, when you click on add file, because इसमें आप ये देखें and conc में कॉर्पस को लोड कर सकते हैं, जस्ट गो विद ऐड फाइल, और आपने पहले मैंने आपको बताया कि आपने यू हैव टू कंपाइल योर कॉर्पस इन अ टेक्स्ट फाइल, नोट पैड में आपने उसको सेव करना है अपने कॉर्पस को, वेदर वो आपका न्यूज़ मीडिया आर्टिकल है या वो आपने व्हाट्सएप की कलेक्शन की है या फिर आपने ट्वीट्स उठाए हैं, ठीक है। तो वो आपने सबसे पहले उसको टेक्स्ट फाइल में लेकर जाना है, देन उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं, यू हैव टू फॉलो data cleaning and mining processes. Then you have to convert the text file in UTF-8. Then after that you have to save your text file. तो जितना आपका corpus आपके जो टूल्स हैं उसको फास्टली रन करेंगे एक तो, और आपका जो डाटा है वो भी आपको बहुत एक, आप जो फाइंड करना चाहते हैं, जो आप पैटर्न्स देखना चाहते हैं, वो इजीली आपको देगा। सो ये कि आपकी उसकी क्लीनिंग एंड डाटा माइनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, एंड देन व्हेन यू गो विद एंड कॉम यू हैव टू डू पीओएस टैगिंग। आपको यहाँ पीओएस टैगिंग करनी पड़ती है, एंड देन इफ यू नॉट देन गो विद द बुलियन ऑपरेटर्स। आप बुलियन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक एडजेक्टिव अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, नाउन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने सर्च बार में उसको आपने जस्ट वहाँ सर्च बार में लिखना है, एंड देन ऑटोमेटिकली गिव यू एडजेक्टिव। सो आपने यहाँ से ऐड फाइल करने के बाद इसको क्रिएट करना है, देन सेव टू फाइल, इट्स अप टू यू। इफ नॉट देन रिटर्न टू मेन विंडो। तो आप देखें ये मेरे पास एक टारगेट जो है वो अवेलेबल यहाँ पे अवेलेबल है। सो इफ आई गो विद द कीवर्ड, आई हैव टू राइट पैलेस्टीनियन और पैलेस्टीन। सो रन करेंगे अब इसको, स्टार्ट। तो ये आप देखें इट ऑटोमेटिकली वर्क। पैलेस्टीन में ये एक आपके पास एक है कि राइट कॉन्टेक्स्ट एंड द लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। अब आप ये देखें, ये मैं आपको पहले ही बता रही थी कि वर्ड जो है वो अपनी कंपनी से पहचान जाते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सी की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। अब पैलेस्टीनियन आपके पास फ्रीक्वेंट अपीयर यहाँ हो रहा है, दिस इज द पैटर्न यू हैव टू फॉलो इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक। सो व्हेन यू गो मूव टुवर्ड द क्लस्टर, सो क्लस्टर मीन्स कि जो दो वर्ड या दो से ज्यादा, इफ यू वांट टू गो विद 3, यू हैव टू सेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रेंज फ्रॉम देयर, एंड इफ यू वांट टू गो विद स्पेसिफिक वन, मैंने आपको यहाँ कहा था कि आप सर्च बार में अगर आप बिल्कुल स्पेसिफाई चीज चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बुलियन ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है, या फिर आप वो शॉर्ट कीज का यूज करके तो अपनी एग्जैक्ट एंड कॉन्ग से फाइंडिंग ले सकते हैं। सो दिस इज द n-gram and collocates। इसकी अगर मैं आपको मेन चीज बताऊं, अगर आपने मेन फाइंडिंग्स करनी है, इट्स कंपैरेटिव एनालिसिस, यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू विद द वर्ड लिस्ट or keyword, then you have to go toward the collocation, the keyword in context, because I think keyword जो है या word list, frequent जो word list आपके पास appear होती है, जो words appear होते हैं, so वो select करते हैं कि आपका main word जो है वो targeted word क्या है। so keyword is the main thing in corpus linguistic। अगर आप उसकी देख रहे हैं तो आपको कीवर्ड ऐसे कि वो फ्रीक्वेंटली अपेयर होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एक वर्ड है मेरे कॉर्पस में जो फ्रीक्वेंटली अपेयर हो रहा है। फिर आप उसकी तरफ जाएंगे, उसको फिर सर्च आउट करेंगे, उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, देन यू हैव टू गो टुवर्ड द कोलोकेट, देन टू गो टुवर्ड द विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। तो जैसे ये कीवर्ड है, बिकॉज कीवर्ड मैंने आपको बताया, कीवर्ड में ये होता है कि आपको यू हैव टू सिलेक्ट 2 फाइल। कीवर्ड उस केस में आपके पास आएंगे जब आपके पास 2
कॉर्पोरा होंगे, इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टू न्यूज़ मीडिया, वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न। सो उसमें आपके पास एक टारगेट होगा और एक दूसरा आपके पास रेफरेंस कॉर्पस होगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, एक यहाँ पे आपका टारगेट है, दूसरा आपके पास यहाँ पे रेफरेंस भी मौजूद होना चाहिए, देन it automatically detect a keyword and you can find a word list or keyword from there. So the next we are going to explore the third one is the if you have any question you can ask, and inshallah I will give you the answer. So the last one is the sketch engine. Sketch engine is also user friendly, but ये कि इसमें 1 मिलियन का आपके पास कॉर्पस है, ये फ्री आपको आपका एनालिसिस कर देगा. बट इफ यू सी मोर देन 1 मिलियन, सो मुझे मेरे केस में मास्टर्स में 1 मिलियन क्रॉस था, to go with the premium version. सो उसमें ये है कि ये आपके पास अब ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. आप इसमें स्केच इंजन, जब इंजन वर्ड है तो ऑटोमेटिकली क्लिक इन योर माइंड कि जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली फास्ट होगा. एंड कॉन्ग जो है वो भी फास्ट है, नो डाउट, बट ये कि इसमें आपकी उससे ज़्यादा फीचर अवेलेबल हैं. इट मोर मूव टूवर्ड कंप्यूटेशनल टूल, कि जिस तरह एक कंप्यूटेशनल टूल में हमारे पास इजीली एक डाटा अवेलेबल हो जाता है, इसी तरीके से स्केच इंजन भी आपको डाटा अवेलेबल करता है विद इन अ सेकेंड. और इसमें बिकॉज आई एम आउट ऑफ प्रीमियम वर्जन, सो इसमें आप 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं. सो इसमें आप ये देखें कि आपके पास ये अवेलेबल है फ्री ट्रायल. व्हेन यू सर्च www.sketchengine.eu, सो आप यहाँ देखिए, इस बार यूजर गाइड अवेलेबल है. ओवरऑल ये आपको यहाँ पे इंच पिंच आपको बता रहे हैं कि वर्ड स्केच क्या है, वर्ड स्केच डिफरेंसेस क्या हैं, सारे कंकॉर्डेंस ओवरऑल जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन जो भी आप इससे करें एंड देन अवेलेबल है. So I think it's more fastest than Ancom. So but इसका ये है कि थोड़ा आपको प्रीमियम वर्जन की तरफ जाना पड़ता है, बट नो प्रॉब्लम, आपका डाटा अच्छा हो तो it doesn't matter. Okay, word sketch differences. There is a difference between the Israel and because ये मैंने इसमें नोटिफाई, मैंने ओवरऑल हैंड ऑन प्रैक्टिस टूल है, बट मैंने इन दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं एंड और स्केच इंजन में, जो मैंने फील किया था वो यही था कि एंड में सम हाउ कंपेरेटिव थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, और उसमें जब अगेन हम आते हैं तो वो हमारा सारा डाटा सम हाउ वो रिमूव भी हो जाता है. बट इन दिस स्केच इंजन में ये नोटिस किया कि इसमें हमारा डाटा अवेलेबल ही रहता है, और हम जहाँ से मैं चाहूँ मैं उधर से एनालिसिस दोबारा से स्टार्ट कर सकती हूँ. तो उसमें थोड़ा सा ये है कि ट्रिकी हो जाता है. सो इसमें एंथोलॉजी कॉर्पस था, वही मैंने उसको यूज किया. बट आई गो विद द वर्ड स्केच डिफरेंसेस. यू कैन सी हाउ फास्टली इट वर्क. इजराइल डिस्क्रिमिनेशन वर्ड में वो किस तरह से यूज हो रहा है, कितने टाइम यूज हो रहा है, एंड द वर्ड विद इजराइल एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट. And then if I want to show visualization, I just click on visualization. This is how it works. If you want to go with a fewer number of collocate, you just click them. If you want a higher or more, yes, the small font size, a large one. So it's very like ये बहुत इस टाइम अच्छा वर्क है. वर्ड लिस्ट है, की वर्ड आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, वर्ड स्केच डिफरेंसेस. कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो आप जब प्रीमियम वर्जन लेते हैं, जैसे कि ये लेक्सिकोग्राफी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड सम डिक्शनरी, because it have on dictionary in sketch engine also. So it work bilingual term. ये इस टाइम बहुत अच्छा आपको सर्व कर रहा है. इसमें एक कॉर्पस भी अवेलेबल है, बट आई थिंक वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है. आई थिंक गुरमुखी का है, वो मैंने देखा था, बट वो लोड नहीं हो रहा था यहाँ.
बट ये है कि somehow इसमें लेक्सिकोग्राफी पे काफी इसमें लोग अब वर्क कर रहे हैं. Tool and it's paid. And VS Code, after I think you have command on AndConc and Sketch Engine, Landsbox, Orange Tool, then you have to go toward VS Code. Because वो फिर एक थोड़ा सा वो ट्रिकी भी हो जाता है. अब आप पहले आई थिंक मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि if you want to command on corpus linguistic, you have to go with the tools first. कि आप जो freely available user friendly start करें, then automatically you are indulging with the computational one. So it's better to go with corpus tool. So which of these tools have you tried? Tell me in the chat box. So we have already covered 3 tools. Every corpus researcher should know. It's just Voyant tool, free, and no need to install. Just type Voyant tool and automatically appear on the top of the search bar. And you just click on the Voyant tool, upload any text or paste a URL, instant word cloud, frequency list, and then see how word change across a long text, export chat and data as image. सो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है. और इसमें मैंने बहुत सी क्वेरीज देखी हैं कि स्टूडेंट्स को होता है कि समहाउ एंड कॉन्क में विजुअलाइजेशन का थोड़ा इशू हो जाता है, समहाउ कि वो नहीं होती है, या वो कुछ आपको विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप इजीली विजुअलाइजेशन को सेव भी कर सकते हैं इन योर कंप्यूटर. सो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज एंड कॉन्क, and it's also free to download. And keyword, see every word in context. Keyword in context means कि आपने collocation तो है कि आपके जो frequent word एक word के surroundings revolve हो रहे हैं, it's negative, it's positive. Someone says that कि negative important होते हैं. Yes, it is. Negative भी important है because when you are go with the semantic prosody, when you are go with सेंटिमेंट एनालिसिस, सो उसमें आप यही देखते हैं कि एक वर्ड जो है वो मल्टीपल वर्ड्स जो हैं वो कैसे एज अ रोल प्ले करें, एज अ पॉजिटिव, एज अ नेगेटिव एंड न्यूट्रल. सो इसमें जो वर्ड भी इटसेल्फ अपीयर हो रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर वो टू भी है वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो जो भी वर्ड आपका अपीयर होगा, इट्स हैव सम वैल्यू. नेक्स्ट इज कीवर्ड लिस्ट एंड कीनेस. कीवर्ड लिस्ट मींस कि जो मेन आपका टारगेटेड वर्ड है, दिस इज कीवर्ड. और कीनेस जो है वो उसको डिटेक्ट करती है कि जो उसमें लॉग लाइवलीहुड या स्टैटिकल कैलकुलेशंस कह दें, दिस इज कॉल्ड कीनेस. वो आपको एंड कॉन्क में सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बट इन स्केच इंजन इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट. वो खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके आपको एग्जैक्ट आपकी फाइंडिंग देगा. बट आप जब एंड कॉन्क में यूज करें तो उसमें है सेटिंग में जाके आपको खुद से सिलेक्ट करनी होती है कीनेस कि आपके लॉग लाइवलीहुड, क्योंकि होता है कि मोर देन ग्रेटर देन 0.05 ये आपकी सॉरी वैलिडेट जो है वो रिजल्ट काउंट होता है. सो आप इसको ये स्टैटिकल कैलकुलेशन भी क्यों इंपॉर्टेंट है और या कीनेस का वर्ड भी इधर क्यों इंपॉर्टेंट है. सो ये कि जब आप एक डेटा बिकॉज इसमें आप जो हैं वो डेटा जो ले रहे हैं वो न्यूज मीडिया का है, और उसमें एक इट्स बिगेस्ट क्वेश्चन. उसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि बाइसनेस का फैक्टर फॉल होता है. तो उसमें जब हम प्रूफ देते हैं कि इट्स नॉट और क्या हमारा अपना ये ओपिनियन नहीं है, समवन सेड, तो उसमें जो हमने उसकी स्टैटिकल कैलकुलेशन सेट की होती है वो हमें वैलिडेट करता है उस रिजल्ट को कि हमारा डाटा जो है वो वैलिडेट है विद दिस कीनेस. सो ये इंपॉर्टेंट रोल है कीवर्ड का या कीनेस का. जैसे MI स्कोर टेस्टिंग होती है वो भी इसी तरीके से है. उसमें भी ग्रेटर देन आपके पास 0.02 होगा, इट्स मीन इट योर डाटा इज वैलिडेट. सो वर्ड विद
प्लेन डॉट टेक्स्ट फाइल वेरी फास्ट, बिकॉज अगर आप एक्सेल शीट में उसको डेटा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो वो वही मैसी हो जाता है और आपका रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं मिलता आपको. So I think this is the main reason of most of the student फेस nowadays कि उनका कॉर्पस जो है वो क्लीन नहीं होता, उसमें मेसी चीजें हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट ग्रामेटिकल कुछ कैटेगरी अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि जस्ट आप कीवर्ड फाइंड है, तो आप बिल्कुल उसको क्लीन करें. फंक्शनल जो वर्ड्स हैं उसको भी समहाउ रिमूव करने की कोशिश करें. आफ्टर डेट आप अपने रिजल्ट देखें, वो एग्जैक्ट आपको रिजल्ट देगा. सो नेक्स्ट इज स्केच इंजन. इसमें आप वर्ड स्केच डिफरेंसेस, ग्रामर एंड कॉलोकेशन को देखते हैं कंपेयर टू कॉर्पस साइड बाय साइड. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आप एक कॉर्पस की बात करते हैं तो इट इज कॉर्पस व्हेन यू हैव टू कंपेयर द टू न्यूज मीडिया आउटलेट. सो इट्स अ टू कॉर्पोरा. ये भी एक कंफ्यूजिंग और कंफ्लिक्टिंग टर्म है जो कि अवेयर नहीं है मोस्टली स्टूडेंट्स के. आप जब आप एक कॉर्पस की बात करते हैं तो दिस इज वन कॉर्पस, बट आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस में जा रहे हैं. एक आपने लिया है वेस्टर्न का, एक आप नॉन वेस्टर्न का देख रहे हैं. इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस. यू हैव टू मेंशन लाइक टू कॉर्पोरा. सो नेक्स्ट इज फुली ऑनलाइन, नथिंग टू इंस्टॉल. ये है कि आप 1 मंथ के लिए इसका फ्री ट्रायल वर्जन ले सकते हैं. वो आपके 30 डेज में हो जाता है. आप मल्टीपल ईमेल्स के थ्रू भी लॉग इन हो सकते हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट. अगर आपको लगता है कि अभी आप प्रीमियम वर्जन में नहीं जा सकते, बट इस तरह से भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट you have a command in ANCOM, Sketch Engine, and the other Corpus tool. Then you have to go to install the VS Code Python, which is very trending nowadays. And it automatically और ये एक PyCharm है और एक दो और भी हैं, but nowadays के VS Code जो है इस टाइम बहुत अच्छा आपको कोडिंग के लिए भी और वैसे भी यूज हो रहा है. इसमें आप ये देखिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ इन VS Code. सो जैसे एनआरटी के स्पेस लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करके उसको और ये यूजर फ्रेंडली भी है कि आप इजीली उधर VS Code सर्च करते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको आपने उसमें जस्ट ये करना होता है कि आपने ऐड टू पाथ उसको लाजमी करें. अगर आप उसको वो नहीं करते तो देन ऑटोमेटिकली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. So download from code.visualstudio.com. This is the website. You have to download, if you want, you download the VS Code from this link. Write simple code to process any data, count word and find collocation automatically, analyze sentiment, positive, negative, neutral. Automatically ये आपको data एनालाइज करके और ये आपको उसमें प्रोवाइड कर देता है जो एक्सेल में या आप जिसमें उसको कमांड देंगे, कोड देंगे, तो उसी में ऑटोमेटिकली वो आपको डाटा सेव करके देगा. वर्क विद एनी लैंग्वेज एनी साइज. इसमें आप किसी भी तरह की लैंग्वेज को रन कर सकते हैं. इट्स अ पंजाबी लैंग्वेज, इट्स अ उर्दू लैंग्वेज, तो ये ऑटोमेटिकली आपके ओवरऑल लैंग्वेज को रन करता है. थाउजेंड ऑफ फ्री ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब एंड ऑनलाइन. बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे मैंने आपको स्केच इंजन के भी दिखाए. ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही वो फीचर है कि यूज़र गाइड आपके पास अवेलेबल है. आप इजीली वहाँ से यूज़र गाइड भी फॉलो कर सकते हैं. मल्टीपल आप उसमें उसी में गिवन है डाटा, आप उस पर क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल वेबसाइट के अंदर भी वो डाटा मिल जाएगा. और सम हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू know the color contrast combination also, the red color, the green color, पर्पल कलर, द ब्लू कलर, येलो कलर. तो ये आपने कलर कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन को भी अपने माइंड में रखना होता है कि कलर कॉम्बिनेशन किस चीज का साइन है और आपको भी चीजों को देखना होता है. सो रिसर्च मेथड इन कॉर्पस स्टडीज. these are some methods you have to follow during corpus linguistics. The first one is keyword in context. Is the show every use of word within context, the most basic and important corpus tool. So keyword in context is the because इसमें ये है कि आपने इसमें लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट को देखना है, फिर आप उसमें से भी स्पेसिफाई करते हैं कि यू विल गो विद द राइट वन और विद द लेफ्ट वन. ठीक है, आपकी डिसाइडेड बेस पे कि आपके डाटा की जो टारगेटेड चीज है, फिर आप
उसी तरफ को मूव करेंगे और आप उसको फाइंड समहाउ आप दोनों भी उठा लेते हैं कि आप दोनों को एनालाइज कर लेते हैं कि ऑन द राइट साइड पैलेस्टीन के साथ क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, ऑन द लेफ्ट साइड क्या यूज हो रहे हैं, तो आपको फिर आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं. So the next one is MI mutual information score. Two word attract each other. Like 3.0 is a strong collocation. ये automatically detect कर देता है in the sketch engine when you go with, मैंने आपको पहले बताया, when you go with the and com you have to stick multiple kind of statistical calculation there. Next is LL log likelihood keenness is something included in the keyword. Find word that appear much more in one corpus than another. Core tooling in CDA research. So इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है when you go with CDA critical discourse analysis and when you select the news media outlet. So automatically उसमें आप खुद भी डिटेक्ट करेंगे when you go with the politic one. जैसे आपने पॉलिटिक्स की कोई भी ट्रेंडिंग, जैसे भी अभी भी न्यूज़ हैं ईरान की आपने ली है या इजराइल पैलेस्टाइन की ले रहे हैं या यूक्रेनियन की ले रहे हैं, उसमें फिर स्पेसिफाई करें मिग्रेंट्स फाइंड कर रहे हैं या कुछ और आपका टारगेट है, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि लैंग्वेज ही है जो एक मोस्ट पावरफुल चीज है, वही आपकी आइडियोलॉजी बिल्डअप कर रही है, वही आपको पावर भी दे रही है. तो ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है यू ऑलरेडी स्टडीड इन सीडीए. तो सीडीए भी इस पे ही बात करता है कि किस तरीके से आइडियोलॉजीज बिल्ड हो रही हैं, कैसे एक लैंग्वेज पावरफुल बन रही है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज ही है जो कि आपको पावरफुल बना रही है इस टाइम. So the next is POS tagging. Agar when you go with the ANCOM, it has some more feature by Anthony. It was developed by, मतलब एंथोनी ने इनको डिवेल्प किया और इसमें मल्टीपल आप देख सकते हैं. इट नॉट जस्ट ANCOM, it has this some more feature in it like tag and itself आपको POS tagging करके दे रहा है. ठीक है, आप इस just load your corpus there, it automatically tag your data. But there are more free tool available which automatically tag your data. It's a free Claude tagger by University. So वो भी बहुत easy है. अगर आपको difficult है, you go with the tag and you go with the free Claude tagger. उसमें आप देखेंगे easily आप बस अपना कॉर्पस को लोड करेंगे, इट ऑटोमेटिकली टैग योर डाटा. तो द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. वर्ड फ्रीक्वेंसी लिस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम ईच वर्ड अपीयर, शो डोमिनेंट थीम एंड टॉपिक इन आवर टेक्स्ट. तो मेनली अगर मैं कॉर्पस की बात करती हूँ तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक. यू हैव टू चेक word frequency list and it is decided whether which word is more important in your corpus. So वो आपको आप देखिए, अगर आप 1 मिलियन जैसे मेरा एक कॉर्पस था और मैं जब वो उसको एनालाइज करी तो मेरे माइंड में एक चीज थी कि अगर ये कंप्यूटेशनल टूल्स या कॉर्पस टूल अवेलेबल ना होते तो ये तो एक बड़ा एक हेक्टिक टास्क होता कि मैं उसको मैनुअली बैठ के डिटेक्ट करती कि इस वजह से पीओएस टैगिंग में निकालती. अब देखिए, एक भी अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज की भी बात करते हैं, उसमें भी अगर मैं उन चीज़ों को निकालने बैठूं तो वो बहुत एक हेक्टिक टास्क है और आपका वो बहुत एक लॉन्ग ड्यूरेशन लेगा, एक 1 मिलियन वर्ड का. तो अब आप इजीली अवेलेबल हैं ये कॉर्पस टूल जो कि ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड आपको आपका डाटा टैग करके दे रहे हैं, उसको फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करके दे रहे हैं, कंकॉर्डेंस दे रहे हैं, कोलोकेशंस आपको मिल रही हैं विद इन सेकेंड. सो आपकी जो मेन टारगेटेड चीज है वो वर्ड फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज कीवर्ड. ये डिटेक्ट कर देती है कि आपकी मेन जो फाइंडिंग है, जो आप यहीं से आप जस्टिफाई हो जाते हैं कि आपका जो कॉर्पस है वो करेक्ट है या नहीं. क्योंकि ये दो चीजें हैं, ये जो फ्रीक्वेंट अपीयर होंगी वर्ड लिस्ट में या वर्ड में, या दूसरा जो मैंने आपको बताया कीवर्ड. इससे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा मेरा कॉर्पस जो है वो इस टाइम ठीक रन कर, इसमें कुछ हमें अभी मुझे अगेन पड़ी कि मुझे दोबारा से मेरा डाटा एग्जैक्ट फाइंड हो.
So next is CDA, corpus plus critical discourse analysis. Combine static with social meaning, find ideology and biases in large text collection. So biases is something very difficult to justify we somehow कि आप ideologies और biases की जब बात करते हैं तो being a Muslim we are considered to be unbiased कि आप वो उन चीज़ों से निकल के बात करते हैं being a neutral बात करना पसंद करते हैं और somehow ऐसा न्यूज़पेपर में है भी जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप खुद भी उस चीज़ को फील करेंगे. So next is how to start your own corpus study. First, you have to choose a topic, then build, find corpus. Then you have to pick method. If you go with the like आपने एक टॉपिक चूज किया, आप उसमें कोई सा भी वर्ड चूज करें और आपने उसमें थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक जहाँ न्यूज मीडिया की भी बात होती है तो उसमें से डिस्कोर्स जो है वो मेन फॉल होता है उसमें और आपको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस समहाउ अपने उस डाटा पे अप्लाई करना पड़ता है व्हेन यू गो विद द मीडिया आउटलेट. इफ नॉट आपकी अवेलेबिलिटी हो सकती है फाइंड करें जैसे सेमेंटिक प्रोसिटी की बात हो रही है या मल्टीपल सेंटिमेंट एनालिसिस की बात हो रही है तो हो सकता है कि आपका डाटा उस चीज को ना भी दे और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो थ्योरी लगा के ही उसको जस्टिफाई करें. So next is use software. The next one is interpret and report. जैसे for example, when you have to choose a topic, be specific. How is climate change discussed in UK versus Pakistani news? So automatically आपको ये इस चीज का पता चल गया होगा कि ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जो कि आप पहले यूके की न्यूज मीडिया आउटलेट लेंगे. इफ इट्स अप टू यू कि आप कितनी उसकी कलेक्शन करना चाह रहे हैं, कितना जॉनरा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कि 2023 से ले रहे हैं या 2024 से आपका कंपाइलेशन स्टार्ट है क्योंकि टारगेटेड ऑन योर ऑन डाटा और एनालिसिस क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना कॉर्पस जो है वो कंपाइल करना स्टार्ट करते हैं. तो इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस. आपने भी पाकिस्तानी न्यूज मीडिया उठा ली यूके एंड यू हैव टू बेसिकली मेन फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज. तो आप बेसिक आपका क्या फोकस होगा कि आप क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करेंगे इन बोथ न्यूज मीडिया. So next is build or find a corpus. Use BNC or COCA or collect news article even 10,000 word is a good start. आप 10,000 या 20 भी आप ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि आप स्टार्ट में ही जो है वो कॉर्पस को कंपाइल करें तो ही आपका जो है वो कॉर्पस होगा. नो, आप एक शॉर्टर कुछ हैं स्टार्ट करें. दिस इज कॉल्ड अगर आपने थोड़ा सा भी कलेक्शन उठा के जैसे मैं कहूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आपने उठा के पेस्ट इन अ टेक्स्ट फाइल, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस. वो कॉर्पस ही है. यानी कि आपने अब एक चैट ली है तो ऐसे क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि शायद ये मतलब बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्पस उठाया है तो क्या ये कॉर्पस है कि ये बड़ा ही होगा, बिलियन मिलियन में जाएगा तो ही ये कॉर्पस होगा. नो, आपने अगर एक व्हाट्सएप चैट भी उठाई है, अगर आपने उसको पेस्ट किया, दिस इज कॉर्पस. टेक्स्ट फाइल में आ गई है तो वो कॉर्पस. नेक्स्ट इज पिक योर मेथड. कीवर्ड फॉर क्लोज रीडिंग, कीनेस फॉर कंपैरिजन. जैसे कि यहाँ है ठीक है इन अ टॉपिक जैसे यूके वर्सेस पाकिस्तानी न्यूज विद वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न. तो ये वहां आपके ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यू हैव टू फाइंड कीनेस फॉर कंपैरिजन क्योंकि वहां आपको डाटा अपना वैलिडेट करना पड़ेगा. So next is sentiment for opinion. Once at a time. Use software Voyant for beginner and Conk for student and the sketch engine for researcher. So अगर आपने स्टार्ट लेना है अभी तो आप वो यार्न से लें. उसमें बिल्कुल बेसिक सा है. आप देन यू हैव टू मूव टूवर्ड द एंड कॉन्ग, देन यू मूव टूवर्ड द स्केच इंजन. फिर आप जब स्केच इंजन में आ जाएं तो देन यू विल गो फर्दर सॉफ्टवेयर लाइक SPSS and Vivo, then the computational tool. So it's easy for you.
So framing and language, what is framing? So the question is कि framing जो है वो कैसे की जाए और framing होता क्या है? सो आई थिंक फ्रेमिंग जो है वो एक जैसे मैं ये बात करूं कि मैंने दो न्यूज़ मीडिया को उठाया, इट्स फ्रॉम कंपैरेटिव एनालिसिस वेस्टर्न की और एक नॉन वेस्टर्न की. सो फ्रेमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने पहले उसको फ्रेम करना है कि ये जो फ्रीक्वेंट वो किस तरह होगा, वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर वर्ड लिस्ट और फ्रॉम योर कीवर्ड. ठीक है, जब आप अपना कॉर्पस उसमें लोड करेंगे, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि आपके फ्रीक्वेंट जो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो आपके पास अपीयर हो जाएंगे. देन ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि इसकी मेन है वो मीडिया की किस तरह से हुई है, कि जिस तरह एक ही इवेंट है 7 हमास अटैक है, या वो कोई और इवेंट हो सकता है, जैसे कि जो चाइना के हैं यहाँ 5 लोग मारे गए, तो उसमें उन्होंने किस तरीके से उस न्यूज को कैसे वो डिटेक्ट करें, कैसे आपको बता रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग. एक उसको टेररिस्ट कंसीडर करेंगे, दूसरे उसको कुछ और वर्ड बम्बार्डमेंट के साथ उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. तो कॉलोकेशन है वो डिसाइड कर रहा है कि क्या वर्ड मोर जो है उसके साथ फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है. जैसे वर्ड ट्राइज की अगर बात करें, तो अगर हम इसमें ए जो है वो कंसीडर एज नॉन वेस्टर्न और वेस्टर्न इट्स कंसीडर एज वेस्टर्न. सो यहाँ जो है वो टेररिस्ट वर्ड एक अगर न्यूज में पेयर हो, तो दूसरी आप देखेंगे उसमें फ्रीडम फाइटर का वर्ड यूज हुआ होगा. So this is how news media frame different कि आपकी एक न्यूज मीडिया अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज सेटिंग की इस तरह से एक न्यूज मीडिया में क्या लैंग्वेज यूज हो रही है और कौन से फ्रीक्वेंट टर्म्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, वो डिसाइड करेंगी कि आपके जो फ्रेमिंग है वो किस तरह से हुई है. सो नेक्स्ट इज नॉमिनलाइजेशंस. पुलिस शूट प्रोटेस्टर्स, या दूसरे में लिखा जा सकता है कि डेथ अकर. So next is presupposition. When did you stop X? The B is question only. So then in modality, जिस तरह should, must और इस तरह की अगर आपकी finding है, and you go with the positive, negative, neutral one. So देखिए official claim and official admit. So ये आप इसका देखें effect on reader, फिर हमने उसको according to reader perception उसको interpret करना होता है. So next is pronoun use. जैसे अब आप देखिए we defend our value, they threaten us. So this is a concept where Van Dyke says us versus them. जिससे आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि वो एक वर्ड डिफरेंस से भी हम देख रहे होते हैं, कि जैसे वन डाइक की एक आइडियोलॉजिकल स्क्वायर मॉडल में उन्होंने डिस्कस किया था अस वर्सेस देम का, तो उसमें भी डिफरेंस क्रिएट यही है. और यहाँ पे भी आप देखें क्रिएट अस वर्सेस देम इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. तो देखिए किस तरीके से एक प्रोनाउन भी आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, कि एक वर्ड से आप आइडेंटिफाई करें कि ये एज अ इन ग्रुप यूज हो रहा है, यहाँ जो है ये इजराइल आउट ग्रुप यूज हो रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इंक्लूड इन द न्यूज मीडिया फ्रेमिंग. तो वो फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली न्यूज मीडिया आपको करके दे रही है, आपने जस्ट उसमें थ्योरी को देखना है. तो मैंने डाटा पहले ही यहाँ पे कह लें थोड़ा स्पेसिफाई किया, तो मैंने फिर उसी चीज से रिलेटेड, उसी कीवर्ड से रिलेटेड ओवरऑल डाटा वही मैंने स्क्रैच किया कि जिसमें मिग्रेंट और बाइसिस का वर्ड यूज हुआ था. जैसे वेस्टर्न की अगर मैं बात करूं, वो भी मैंने इसी तरीके से स्क्रैप किया, डाटा मैनुअली किया. और फिर नॉन वेस्टर्न में से भी इसी तरीके से, जहां पे यूक्रेनियन मिग्रेंट एंड बाइसिस शो हो रहा था, वही डाटा वो वहां सर्च बार में न्यूज मीडिया में भी होता है, आप वहां कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं और एंड लगा के बुलियन ऑपरेटर्स उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, और आपको एग्जैक्ट आपके जो न्यूज मीडिया है जो आप स्क्रैच आउट करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाती है. सो नेक्स्ट इज यूएस ईरान रिलेशन. इसमें भी सेंटिमेंट एनालिसिस देखा, और इसमें जो वर्ड उसको फिर this is how we validate our result when you go with the comparative analysis. It's very important. This, and if you go with a comparative one, you have to be more focused or validate your result. And then Punjabi Shahamukhi morphology is find like plural suffix appear multiple times, like the word appear, जो कि पंजाबी में most एक स्क्रिप्ट मैंने उठाई थी और उसमें मैंने अप्लाई किया था
तो उसमें जो मुझे मोर फ्रीक्वेंट जो वर्ड मिला वो आ यूज होता है पंजाबी लैंग्वेज में. So I definitely validate my result, and the last is my MS thesis, Israel Palestine, and I just find the apartheid word कि वो किस तरह से appear हो रहा है. और क्योंकि ये apartheid word आप देखें, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जो मैंने इसको भी चूज किया था, तो जस्ट मेरे माइंड में एक वर्ड था कि apartheid जो है वो just used with the with white and black peoples. So AI is very fast, and it replaced all the technologies over there. So the first one is AI and LLM corpus study. So at this time, I think Chat GPT is very like एक तो बहुत एक फास्ट है, और उसमें ये मॉडल्स अगर आप चैट जीपीटी को एक्सप्लोर किया हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की हो, तो आपको उससे पता चला होगा कि चैट जीपीटी इस टाइम बहुत एक आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग पे वर्कआउट कर रहा है इस टाइम. और उसमें इटसेल्फ मॉडलिंग भी अवेलेबल है, उसमें आर्किटेक्चर भी अवेलेबल है, उसमें आप प्रोग्रामिंग भी इस टाइम चैट जीपीटी को अगर मैं एक्सप्लोर करती हूँ, और मैं करती भी हूँ, तो वो उसमें मैंने ये देखा उसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग इटसेल्फ ऐड है. तो इट्स वर्क ऑन अ लार्ज स्केल मॉडलिंग. So how do ChatGPT and Brad learn from corpora? Brad embedding models means कि जैसे एक sentiment analysis है, when you go with the positive, negative and neutral one, Brad is something like that कि आप उसमें large modeling के through अपनी जो जिस कहते हैं, मैं कहूँ कि अब मैंने कॉर्पस बेस्ड स्टडी की, ठीक है, उसके बाद मैं उसको अब कंप्यूटेशनल की तरफ लेकर जा रही हूँ. तो मतलब मुझे अब उसमें ब्रैड एम्बेडिंग मॉडल को डिवेल्प करना पड़ेगा. आफ्टर दैट मुझे मेरा कोई एक टूल खुद डिवेल्प होगा. दिस इज लार्ज लैंग्वेज डेटा. वो मॉडल के थ्रू मैं चीजों को डिवेल्प करूंगी, कोई टूल डिवेल्प करूंगी. सो दिस इज बेसिकली ब्रैड एम्बेडिंग मॉडल. So what biases are hidden in their training data? उससे हम ये कि अब आप ये देखें biases का वर्ड frequently यहाँ यूज हो रहा है when you go with the news media outlet. So उसमें मैंने आपको पहले बताया कि biases का वर्ड frequently यूज होता है when you go with the news media. So आप ये भी large language modeling के थ्रू या ये जो corpus tools हैं, computation tools के थ्रू आप कर सकते हैं. So the next one is social media as corpus. You go with the Twitter, TikTok, YouTube as corpora. Studying, framing, identify digital spaces. आप social media को as a corpus use करें. Twitter ले सकते हैं, TikTok में से YouTube की जो videos हैं वो भी आप stretch कर सकते हैं, उसको transcribe कर सकते हैं. So this is basically the corpus or corpora. The next is declarative research. Corpus method for Urdu.